So hey students, I'm Shlok Jhawar and I'll be teaching you English literature in of class 9 syllabus, and it's drama of Julius Caesar. Yeah, the drama of Julius Caesar by author Shakespeare. Yeah. So this is Act 1, Scene 1. It is the first most act of the play, and the play is taking place in Rome. And this act scene 1 is held in the place a street in Rome, means any street in Rome this act is being placed. And in this act there are Flavius, Marullus. In this scene there is Flavius, Marullus and certain commoners. Here commoners refers to the common citizens of Rome, and Flavius and Marullus are tribunes, or you can say senators, like they were in the lowest positions. Yeah, and yeah, and they are here to show and they are here to beginning in the act. Yeah. So Flavius, hence home you idle creatures, get you home. Here hence means get away from me. The word hence means get away from here. Flavius is saying that go away home, go away to your home, you idle creatures. Means he is referring to the commoners. Get you home, you go to your home. Is this a holiday? Is the day a holiday? What do you not? Be mechanical. You ought not walk upon the laboring day without the sign of your profession. He means that, is it a holiday that you are roaming in the streets of Rome without any sign of your profession? Means the sign of the profession means like a tailor has the inchy tape and the cobbler has an awl. So why are you roaming in the streets of Rome without your trade, without any sign of your trade? Speak, what trade art thou? Means Flavius is now asking others that what is your trade? What is your work? What do you do for your living? And the word mechanical here means manual work. Being a manual worker who works for others like a cobbler, a carpenter. So the first commoner says, why sir, a carpenter? So the first commoner says that, sir, my work is a carpenter. And here he refers sir as Flavius is the master of him. Marullus. Now Marullus, another tribune or senator as you can refer, says that, where is thy leather apron and thy ruler? What 1 minute. So yeah, I'm back. So here Marullus says, what is thy leather apron? Where is thy leather apron and thy ruler? He means here that, where is the leather apron which you wear, a carpenter wears to protect the dress, and the ruler in which they measure the length? What does thou with the best apron on? Here best apron means the best clothes. Like the carpenter is wearing his best clothes in the street in a working day, and why he's roaming in the streets of Rome with his best clothes on. You, sir, what trade art thou? Now Marullus is asking another person, like the second commoner, that what trade are you? And here we'll see that the second commoner, being deceptive and trying to act smart and trying to play with the tribunes. Truly, sir, in respect of a fine worksman, I am but, as you would say, a cobbler. I can say in Hindi also. ठीक है. तो इधर हमें देखने को मिल रहा है कि truly sir, in respect of a fine worksman, ये उधर बोल रहा है कि sir,
मैं एक बहुत अच्छा कारीगर हूँ, आई एम अ गुड वर्कमैन एंड आई एम बट एज यू कैन से अ कॉबलर। सो ये इधर बोल रहा है कि सर आई एम अ कॉबलर, बट ये इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से बोल रहा है कि मेरुलस को समझ में नहीं आया। सो मेरुलस अगेन आस्क्स बट व्हाट ट्रेड आर दाउ, आंसर मी डायरेक्टली। तो मेरुलस बोल रहा है तुम ये अपना नाटक बंद करो कि लाइक फाइन वर्क्समैन, हाँ तुम हो गए अपना फाइन वर्क्समैन, यू आर अ गुड वर्कर, बट for now what is your trade, simply answer to me। So second commoner again says, a trade, sir, that I hope I may use with a safe conscience, which is indeed, sir, a mender of bad souls. This is a very important line in the scene in Act 1, Scene 1. ये बोलता है सर मेरा एक ट्रेड है जो आई वॉन्ट टू यूज इट एंड आई वॉन्ट टू अपग्रेड इन इट विथ सेफ कॉन्शियंस, मतलब जो मेरे लिए भी सेफ हो, सबके लिए सेफ हो, सब बहुत इजी चीज हो, लाइक इट्स वेरी गुड। फिर वो एक मतलब एक बहुत आयरनिकल लाइन बोलता है, लाइक वेरी बहुत सही लाइन बोलता है कि सर आई एम अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। अब यहाँ पर बैड सोल्स देखो, ये एक पन है, क्या है, इट्स अ पन। ठीक है, सो इधर पन का क्या मतलब है, इधर वो बोलता है सर बैड सोल्स। अब बैड सोल्स दो तरीके के होते हैं, एक बैड सोल होता है जूते का सोल, द शू सोल्स, एंड सेकेंड सोल इज SOUL। तो इधर SOUL का मतलब होता है एक इंसान का आत्मा, सो बैड सोल। सो ये सुनने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि मेरुलस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लाइक बैड सोल्स उसने बोला तो उसको लगा कि वो उसके आत्मा उसके बारे में बोल रहा है, उसके कैरेक्टर के ऊपर बोल रहा है। सो मेरुलस अब बोलता है व्हाट ट्रेड दाउ नेव, दाई नॉटी नेव, व्हाट ट्रेड। तो वो वापस मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर देके बोलता है कि व्हाट ट्रेड दाउ नेव। सो इधर वो बोलना चाहता है, नॉटी का मतलब इधर होता है गुड फॉर नथिंग, नॉटी का मतलब गुड फॉर नथिंग, और नेव का मतलब है रोग, यूजलेस फेलो, यूजलेस फेलो। सो नॉटी यूजलेस फेलो मींस गुड फॉर नथिंग रोग फेलो, तुम्हारा काम क्या है बताओ मेरे को। सो वी कैन सी कि द ट्रिब्यून्स और senators have a lot of power against the commoners। ये commoners को exploit करता है, like they are coming and asking to the commoners कि काम बताओ अपना, and the commoners have to answer it with respecting them। इधर ये बोल रहा है कि respecting them, कि वो उन लोगों को नेव बोल रहा है, उन लोगों को नॉटी फेलो बोल रहा है, यूजलेस कम बोल रहा है। सो सेकंड लाइन में हम बोल रहे हैं, सेकंड कॉमनर वापस बोल रहा है ने सर आई बिसीच यू सर बट नॉट बी आउट विथ मी येट सर, येट इफ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू। सो इधर बहुत सिंपल तरीके से बोल रहा है ने मतलब नो सर, आई बिसीच यू, आई बिसीच यू का मतलब, इधर बिसीच का मतलब होता है रिस्पेक्ट यू, बिसीच का मतलब होता है रिस्पेक्ट यू सर, सर बी नॉट आउट विथ मी येट इफ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू। तो इधर ये बहुत सरकास्टिक लाइन बोलता है, सर इफ यू बी आउट विथ मी देन आई कैन मेंड यू सर। सो इसका ये मतलब होता है कि अगर वो उसको, अभी हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, लाइक जूलियस सीजर में इंटरप्रिटेशन ही मेन चीज होता है। सो इधर इंटरप्रिटेशन से हम लोग बोल रहे हैं सर बी नॉट आउट विथ मी, तो अगर आप मेरे ऊपर गुस्सा हुए एंड इफ यू ट्राई टू हिट मी आई विल मेंड यू सर, मतलब मैं आपको पॉलिश कर दूंगा एंड आई विल मेक योर बैड सोल अ गुड सोल। बट यहाँ पर उसका क्या इंटेंशन है बोलने का कि सर अगर आप, आई रिक्वेस्ट यू सर, बट अगर आप मेरे साथ गुस्सा हो जाओगे एंड इफ यू बी आउट विथ मी सर देन आई विल मेंड यू, मतलब मैं आपके जूते का सोल मेंड कर दूंगा। यू नो वेरी सरकास्टिक वे में वो बोल रहा है। मरोलस वापस बोल रहा है व्हाट मीनस दाउ बाय दैट मेंड मी दाई सॉसी फेलो। अब ये बोल रहा है तुम क्या बोलना चाहते हो यू फूल, यू लो पर्सन, यू विल मेंड मी, तुम मेरे को ठीक करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे बोलने की। और इधर सॉसी फेलो का मतलब है
डिसरिस्पेक्टफुल फेलो, सॉसी का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है। अब सेकंड कॉमेंट वापस बोलता है, वो बोलता है व्हाई सर कॉबिल यू, तो अब वो अब ऐसा नहीं बोला कि मेंट यू, अब बोला कि सर आई कॉबिल यू, मतलब देख लो डिफरेंट वर्ड यूज कर रहा है टू मेक मेडुलस एंग्री, बट वो तो खुद को करेक्ट वो कर रहा है प्रूफ, ठीक है। तो अब फ्लेवियस अब इतना दिन से सुन रहा था इन लोगों का कन्वर्सेशन, सो अब वो इंटेलिजेंटली बोलता है thou art a cobbler, art thou, तो इधर दाव का मतलब होता है आर यू अ कॉबलर, आर यू, दाव का मतलब आर, आर्ट का यू आर, मतलब दाव का मतलब है यू, इसका मतलब है यू, और आर्ट का मतलब है आर यू आर, अ कॉबलर, आर यू। सेकंड फिर बाद में सेकंड सिटीजन जो इतना देर से मजाक कर रहा था वो वापस बोल रहा है truly, sir, all that I live with is a all. I meddle with no tradesman matters, no woman's matter, but an all. तो इधर ये अपना काम का इंपॉर्टेंस बता रहा है कि सर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी ट्रेड्समैन हो, कोई कुछ भी काम करे, चाहे कोई लड़की भी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑल इज माई वर्क, माई ड्यूटी, मेरा सब काम है is with my all, and I respect my work and I love my work, ठीक है। Indeed sir, I am a surgeon of old shoes, तो इधर बोला था मेंड कर देगा, तो इधर he is respecting his work, ये बता रहे कोई वक्त ज्यादा बड़ा नहीं होता, he is respecting his work and giving full importance, like I am a surgeon of old shoes, when they are in great danger I recover them, मतलब जब तुम्हारे कुछ बॉडी में कुछ हो जाता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर वापस ठीक कर देता है, तो वैसा ये इंपॉर्टेंस अपने जॉब को दे रहा है, अपने काम को दे रहा है, एज प्रॉपर मैन एज एवर ट्रोड अपॉन, सो ये अब अपने काम का वो बता रहा है कि कितना अच्छा वर्क्समैन है, सो एज पर मैन, as proper men as a ever trod upon needed leather, मतलब needed leather मतलब जित इस पूरे टाउन में रोम में जो सबसे अच्छा, जो सबसे बेस्ट शूज के साथ चल रहा है, वो मतलब उसका यही मतलब है कि वो मेरे कालीगरी, मेरे हाथों के वर्क से उसका शू होके रखा है, सो मैंने ही उसका काम किया है। फ्लेवियस अब बोलता है बट wherefore art not in thy shop today, तुम लोग अपने शॉप में क्यों नहीं हो, तो why are you not working and why are you in the Rome, मतलब why are you in the street of Rome with your best outfit on, why thou these lead men about these street, तो तुम इन सारे इंसानों के साथ करना क्या चाहते हो इन रोम के स्ट्रीट्स में, तुम लोग क्यों घूम रहे हो, तो सेकंड सिटीजन वापस बोल रहा है truly sir, to wear out the shoes, to get myself into more work, तो इधर क्या दिखता है that he is very passionate towards his work, ठीक है। सो वो अपना काम से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो क्या बोल रहा है सर अगर मैं सबको आज लेके बाहर जाऊंगा क्योंकि सब जन हॉलीडे की मूड में, तो मैं इसलिए सब जन को और प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ कि भाई सब जन बाहर चलो मेरे साथ, क्यों, क्योंकि उन लोग का शू वेयर आउट होगा, उनका शूज ज्यादा घिसेगा, और फिर सर आई गेट मोर वर्क, तो उसे काम करने को और वर्क मिलेगा, क्योंकि इधर आराम से बताया नो ट्रेड्समैन मैटर, नो वुमेन्स मैटर, बट इंडीड सर वी मेक हॉलीडे, अब वो ट्रू रीजन बता रहे कि हम वो लोग स्ट्रीट में क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि उन लोग का हॉलीडे है आज, टू सी सीजर एंड द रिजॉइस इन हिज ट्रायम्फ, तो इधर ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री प्रोसेशन, मतलब सीजर देखो, अब हिस्ट्री ऐसा है कि सीजर पहले एक ट्रायमा वेरिएंट था, सीजर का था, तो अभी हम लोग मेन दो जन का बात कर रहे हैं, तीन जन का ट्रायमा वेरिएंट था, बट अभी हम लोग दो जन का बात करना है, एक है सीजर एक है पॉम्पे, तो अब सीजर और पॉम्पे के बीच में एक लड़ाई हो गया, तो सीजर ने पॉम्पे को हरा दिया, अब पॉम्पे के कितने बच्चे थे, दो लड़के थे, अब सीजर ने उनके उसके दो लड़के को भी मार दिया, हाँ, अब सीजर बचा अकेला, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो तीन में डिवाइड होकर रखा था रोम का पावर, वो अकेला सीजर के ऊपर आ गया, तो सीजर को मिल गया हमारा क्राउन, तो सीजर अभी हमारा विक्टोरियस पर्सन हो गया, ठीक है। तो इधर वो क्या बता रहा है, वी मेक होल हॉलीडे टू सी सीजर, तो जब सीजर अपने विक्ट्री पोजीशन में आएगा वापस, जब जो सीजर जीत के आएगा सर हम उसको देखने के लिए सर इधर है, वो कभी भी आ सकता है ना सर, तो अगर हम काम में करेंगे तो उसके
विक्ट्री पोजीशन में सेलिब्रेट कैसे करेंगे सर? अब देखो मेरुलस और फ्लेवियस अब इस आंसर का कैसा जवाब देता है। देख के अभी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला अब। या फ्लेवियस अब बोल रहा है हाँ ठीक है, ट्रायम्फ हो गया ना, तो अब ये आता है मेरुलस से वापस। अब देखना ये जो भी स्पीच होने वाला है मेरुलस का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच। ये जो बोलने वाला है मेरुलस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका तुम लोगों को हर एक लाइन का मतलब आना चाहिए। तुमको इंटरप्रिटेशन आएगा, तुम्हारे एग्जामिनेशन में भी आएगा ये क्या मतलब होता है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ठीक है, ठीक है, चलो पढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्या है। वेफर रिजॉइस मतलब बोल रहा है तुम लोग किस चीज का, जैसे इसने बोला था ना सर रिजॉइस इन हिज ट्रायम्फ, तो वो बोल रहा है कि तुम लोग किस चीज का रिजॉइस करोगे, तुम लोग किस चीज का पार्टी करोगे। ठीक है, व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स यू होम, मतलब वो बोल रहा है कि वो क्या विक्टोरियस, किससे विक्टोरियस हो क्या आ रहा है, लाइक वो कितना ज्यादा पैसा लाएगा, कितना गोल्ड लाएगा, क्या टेरिटरी लाएगा, वो लाएगा क्या, सीजर वापस रोम में लाएगा क्या, वो क्वेश्चन कर रहा है सिटीजन से। व्हाट ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम, देखो होता था, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम टू ग्रेस इन कैप्टिव ऑफ हिज चैरियट व्हील्स। तो अब देखो सिंपल सी बात है, पहले जमाने में रोम में जब कोई राजा जीत जाता था दूसरे राजा से, तो वो क्या करता था कि वो राजा को अपने रथ के, अपने चैरिट के व्हील में टाई करके आता था, उसको टाई करके अपने उधर लाता था, और जो भी उसके सामने से गोल्ड और वो सब जो भी चीज वो ला रहा है, ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल, वो उसको रोप से टाई करके आता था अपने व्हील्स में। तो देखो चैरियट व्हील्स, बॉन्ड इन हिज चैरियट व्हील्स। तो ये ट्रिब्यूटरी बता रहा है, मैं मेरुलस बता रहा है कि सीजर क्या जीत रहा है, वो क्या टेरिटरी ला रहा है, क्या पैसा ला रहा है, वो क्या चीज ला रहा है रोम में, जो तुम लोग सब इतना हैप्पी हो लोग, मतलब वो रोम का क्या भलाई क्या है सीजर, जो तुम इतना ज्यादा इस सीजर सीजर कर रहे हो। अब देखना, you blocks, you stones, you worse than senseless things। यहां पर blocks का मतलब है हार्टलेस पर्सन। तो देखो ये कितना गंदा तरीके से उन कॉमनर्स को रेफर कर रहा है, लाइक यू हार्टलेस पीपल, यू स्टोन, यहां पर स्टोन का मतलब होता है यू कोल्ड हार्टेड, मतलब यू हार्ड हार्टेड पीपल। यू वर्स एंड सेंसलेस थिंग इधर है ऑब्जेक्ट इनकेपेबल ऑफ फीलिंग, मतलब तुम लोग के पास हार्ट नहीं है, तुम लोगों का कोई फीलिंग वीलिंग नहीं है, तुम लोग बहुत गंदे इंसान हो। ठीक है, अब ऐसा गंदे पेपर में लिख के मत आ जाना, यू नो स्टैंडर्ड होना चाहिए एग्जाम का। मैं तो बस तुमको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए इसके लिए ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, यू नो एकदम इजी भाषा में। तुम लोग मेरे पास पढ़ोगे, आई एम डैम श्योर तुम लोग का 90% आएगा, 90% से ज्यादा आएगा। ओ यू हार्ड हार्ट्स, यू क्रूअल मैन ऑफ रोम। अब वो ज्यादा थोड़ा इमोशनली उन लोग को बोल रहा है, इमोशनली। ठीक है, यू हार्ड हार्ट मतलब यू स्टोन हार्टेड, यू कोल्ड हार्टेड पीपल ऑफ रोम, न्यू यू नॉट पॉम्पे। अब मैं आपको बताया था ना कि सीजर अभी पॉम्पे और पॉम्पे के दो बच्चे को हरा के आ रहा है। यस, तो इधर वही देख रहे हैं, यू डू यू नॉट रिमेम्बर पॉम्पे, द किंग पॉम्पे, द ग्रेट पॉम्पे, मैनी अ टाइम एंड ऑफ्टन, मतलब तुम ऑफ्टन का मतलब है ऑफन, OFTEN। देखो तुम्हारे जूलियस सीजर की बुक्स में इन सब का मतलब दिया हुआ रहेगा, तो इसलिए मैं अभी साइड में लिख के नहीं रखा। ओके बच्चा, हाँ, you not Nampe? Many a time and often have you climbed up the walls of the battlement। अब देखो, have you climbed the walls of the battlement to towers and windows, yeah the chimney tops, your infants in your arms, and there have sat the livelong day with patient expectation। तो इधर क्या बता रही इस लाइन में, पेशेंट एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो इसमें बता रहे कि वो लोग पॉम्पे का एक झलक देखने लिए, टू सी द ग्रेट पॉम्पे पास टू द स्ट्रीट ऑफ रोम। बस ये पॉम्पे को स्ट्रीट ऑफ द रोम में पास करने के लिए वो लोग क्या करते थे, क्लाइंब अप कर रहे थे, वॉल क्लाइंब अप करते थे, कासल के टॉप में जाके बैठ जाते थे, चिमनी के ऊपर बैठ जाते थे, टावर्स के ऊपर चढ़ जाते थे, विंडोज के ऊपर चढ़ जाते थे,
इनफैक्ट उन लोगों को ये भी फर्क नहीं पड़ता था कि बच्चा उनके हाथ में, वो लोग बच्चा को लेके चढ़ जाते थे ऊपर, ठीक है, विद पेशेंट से बैठते थे पूरा, लाइक अगर पॉम्पे को आने के लिए पूरा दिन लगेगा, हाँ पूरा दिन भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, सिर्फ क्या देखने, पॉम्पे को देखने, मतलब देखा पॉम्पे का रिस्पेक्ट। तो इधर मेरोज फ्लेवर्स क्या करते हुए दिख रहा है, वो लोग पॉम्पे का रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है, और जूलियस सीजर का बोल रहा है कि जूलियस सीजर को हर्ट करो। जूलियस सीजर क्या ही किया है, वो उस पॉम्पे को मार के आ रहा है, एंड पॉम्पे वाज अ ग्रेट पर्सन ऑफ रोम, जिसको सब जन प्यार करते थे, अब जूलियस सीजर उसको ही मार के आ रहा है। एंड व्हेन यू सी हिज चैरियट बट अपीयर, मतलब जब तुम लोग उसका देखो, अब वो लोग इधर चढ़े हुए रहते थे ना, तो अब सबको सब जन क्राउडेड होता है, सबको क्लियरली तो दिखेगा नहीं बच्चा, ठीक है, तो कैसे दिखेगा, अगर उन लोग को एक झलक भी मिल जाता था पॉम्पे का या उसके चैरियट का, तो वो लोग एक यूनिवर्सल शाउट देते थे, मतलब यूनिवर्सल शाउट, तो सोचो क्या एम्फोसिस किया है यहाँ पर, एम्फोसाइज किया, यूनिवर्सल शाउट, इतना जोर से चिल्लाते थे सब जन, दैट टिबर है ना, टिबर लेक, द बैंक टिबर, वो मतलब टिबर एक रिवर है यहाँ पर, रोम में रिवर है, जो रिवर है ना वो उसका एकदम बैंक होता है, एकदम जो नीचे वाला सरफेस होता है वो भी ट्रेम्बल करने लग जाता था, सोचो इतना ज्यादा आवाज आता था वहां से, टू हियर द रेपिटेशन रेप्लिकेशन ऑफ द साउंड, और वो लोग इतना जोर से चलाते थे कि रिवर के बैंक से, और इको होता था पूरा जगह पर आवाज उन लोगों का, एको होता था पूरा आवाज, एंड मेड इन अ कॉन्केव शोज, मतलब वही बैंक के बारे में बोल रहा है उसके, एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर, मतलब बेस्ट क्लोथ्स तुम लोग अभी पहन रहे हो, एंड डू यू नाउ कॉल इट अ हॉलीडे, इधर CALL है, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर CULL का मतलब है कॉल, CALL, सो हम लोग इसको ये कर लेंगे तो कॉल हो जाएगा, ठीक है बच्चा, कॉल आउट अ हॉलीडे, अब तुम लोग एक हॉलीडे बना रहे हो कैसे है, तुम लोग क्या अपना अभी, मतलब तुम लोग पॉम्पे के लिए सब करते थे, और अब तुम लोग सीजर के लिए अपना बेस्ट अटायर पहन के रखा है, और तुम कॉल आउट द हॉलीडे किया है, किसके लिए, सीजर के लिए, जो पॉम्पे को मारा और पॉम्पे के बच्चों को मार के पूरा पावर ले लिया, तो उसके लिए इतना मेहनत कर रहे हो, एंड डू यू नाउ स्ट्रू फ्लावर्स इन हिज वे, मतलब वो लोग फूल फेंकते हैं कि सीजर जाए तो वो लोग फूल फेंकेंगे, लाइक वो लोग स्ट्रीट को पूरा डेकोरेट करके रखे हैं, वो लोग सीजर के विक्टोरियस चार्ट्स पेपर्स हर जगह सेलिब्रेट करके रखे हैं, सीजर के एंट्रेंस में पूरा सेलिब्रेट करके रखे हैं, और तुम लोग को ये और पता चलेगा लेटर ऑफ द स्टोरी में कि सिर्फ सीजर का रिटर्न ही नहीं है, अभी फीस्ट ऑफ रूप्रिकल भी है, हाँ फीस्ट ऑफ रूप्रिकल बेटा, फीस्ट ऑफ रूप्रिकल, रूप्रिकल वाज अ वेरी बिग थिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीस्ट होता था, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वो एक फीस्ट, उन लोगों एक सेलिब्रेशन है, जैसे यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है, जगरात्रि पूजा होता है, गणेश चतुर्थी होता है, शिवजी जी का होता है ना, वहां पर फीस्ट ऑफ रूपीज होता था, तो अब यहाँ पर आ गए बच्चा, तो बेस्ट अटायर हॉलीडे तुम लोग ने कॉल किया, एंड यू नाउ स्ट्रू फ्लावर्स ऑन हिज वे इन द कम, हाँ अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, दे कम इन द ट्रायम्फ ओवर पॉम्पेज ब्लड, इधर पॉम्पेज ब्लड का मतलब ये नहीं है कि पॉम्पे का खुद का बॉडी का ब्लड, यहाँ पर है पॉम्पेज ब्लड, मतलब पॉम्पेज सन्स, पॉम्पेज सन्स, सन्स मतलब उसके दो बेटों के बारे में बात कर रहा है, बी गॉन, अब देखो ये बी गॉन उसने, इधर देखो अपोस्ट्रोफी मार्क है, अपोस्ट्रोफी है, अपोस्ट्रोफी का मतलब एम्फसिस किया है, बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है इस वर्ड को, बी गॉन, लाइक जब गुस्से में होता तुम्हारी मम्मी, जब तुम्हारा टीचर गुस्से में होता तुमको बोलता नहीं जाओ यहाँ से, लीव द क्लासरूम, वरना मम्मी जोर से पीटती है चप्पल, यहाँ पर वही बोला बी गॉन, चले जाओ यहाँ से, रन टू योर होम, फॉल इनटू योर नीज, मतलब बोल रहा घर जाओ तुम लोग सब, भगवान के तुम्हारे घर में जहां भी गॉड है उसके सामने नी में गिर जाओ अपने, बेग फॉर मर्सी, ठीक है, प्रे टू द गॉड टू इंटरप्रेट योर प्लेग, यहाँ पर प्लेग का मतलब है, मतलब इधर लिखा हुआ है ना इंटरमिट द प्लेग, यहाँ पर मतलब है न्यूट्रलाइज द डिसरिस्पेक्ट दैट द पीपल हैव मेड, मतलब दे हैव मेड, द कॉमनर्स हैव मेड, अब वो लोग देखो पॉम्पे के उधर सेलिब्रेट करते थे, अब जो सीजर जो उसके पॉम्पे के बच्चों को पॉम्पे को मार के आ रहा है उसके लिए भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब वो हुआ ना, मतलब उन लोग ने चीट किया है पॉम्पे को,
तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो तुम लोग ने जो ये गलत काम किया है, अब गलत काम को लोग प्लेग के तरह बोल रहा है, लाइक एक डिजीज होता है ना प्लेग, हाँ बच्चा, तो उसके तरह ही बोल रहा है प्लेग के तरह कि तुम लोग ने क्या किया है, जो तुम लोग ने सिन किया है, जो तुम लोग ने गलत काम किया है, तो इंटरमिट द प्लेग मतलब तुम्हारे जो एक गलत काम है उसको न्यूट्रलाइज कर दे भगवान। तो भगवान के पास जाके प्रे करो, तुमको न्यूट्रलाइज कर दे। एंड दे गिव एंड दे मस्ट that needs much light on this ingratitude, मतलब भगवान का रोशनी लाओ अपने ingratitude में, pray beg for mercy कि God pardon me, और अपना ingratitude है उसको gratitude में वापस लाओ, मतलब वापस लाओ, वैसा तो हो नहीं सकता ना यार। हाँ, अब थोड़ा इसको एक बार मिटा देता, वरना मैं वापस कुछ लिखूंगा तो तुमको समझ में। हाँ मैं इतना लिखने में करता नहीं, क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स भाई लिखा तो अच्छे से जाता नहीं बेटा, ठीक है बच्चा। तो आता है मेरुलस। अब फ्लेवियस, अब मेरुलस ने बोला, मेरुलस ने इतना अपना स्पीच दे दिया, अब सबका हर्ट हो गया, अब सबको रियलाइज हो रहा है वो लोग क्या प्ले कर रहे हैं, वो लोग क्या गलत काम कर रहे थे। तो फ्लेवियस वापस आ गया। अब फ्लेवियस क्या बोल रहा है, गो गो गुड कंट्रीमैन एंड फॉर दिस फॉल्ट असेंबल ऑल द पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट। ठीक है, अभी बोलना क्या चाहता है फ्लेवियस, गो गो कंट्रीमैन मतलब जाओ, तुम लोग जाओ यहाँ से, डिसलोकेट हो जाओ अपने गलती के कारण, और अपने गलती के कारण सारे पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट मतलब सारे कॉमनर्स जो भी अभी अपना जॉब छोड़ के अभी स्ट्रीट में घूम रहे, उन सबको इकट्ठा करो एंड ड्रॉ टू द टिबर बैंक, और टिबर बैंक में जाओ एंड वीप करो, रो, इतना रो, लाइक अमाउंट ऑफ रो, इतना रो कि लोएस्ट स्ट्रीम, लाइक ट्रिबर बैंक के जो एकदम लो में जो पानी है ना, एकदम एकदम शैलो वाटर जो है ना, वो भी तुम लोग इतना रो कि वो आके ऊपर किस करे शोर को, मतलब वो शोर से मिले, समझ रहे हो? ठीक है, वापस समझा तो बच्चा। गो गो कंट्रीमैन ऑफ रोम असेंबल ऑल पुअर पीपल ऑफ योर सॉर्ट, मतलब जाओ यहाँ से जाओ, डिसलोकेट हो जाओ, अब सारे इनग्रेटफुल पीपल को इकट्ठा करो, टिबर बैंक में जाओ, ठीक है, टिबर बैंक के उधर असेंबल हो, और फिर वहां पर अपना प्लेग को अपना डिसइंफेक्ट करो, अपने आप को, अपना जो इनग्रेटिट्यूड था उनमें से अब इन हटाओ, बी ग्रेटफुल फॉर पॉम्पे, ठीक है, ग्रेटफुल हो, पॉम्पे को रिस्पेक्ट दो। अब जो तुम लोगों ने किया आप कैसे दोगे भाई? अब मेरुलस ने क्या बोला था, गो नील प्रे टू द गॉड। अब फ्लेवियस क्या बोल रहा है, रो टीयर शेड करो अपना, और चैनल द लोएस्ट टीम, कि उसका जो टिबर बैंक है उसका जो सबसे नीचे का पानी है वो भी ऊपर आके शोर के से मिल जाए, इतना रो, समझ रहे हो? फिर बाद में इधर एग्जीक्यूट एग्जिट, एक मिनट रुकना बच्चा, मैं पढ़ नहीं पा रहा, मतलब अब ये सेंटेंस का मतलब है कि सारे कॉमनर्स उस सीन से चले गए। लाइक देखो पहले जमाने में बच्चा क्या होता था, एक जगह पर होता था ये सब क्लासेस, मतलब एक ड्रामा है ना, तो ड्रामा का एक्ट होगा, है ना बच्चा, तो अब एक्ट होगा तो स्टेज से अब सारे कॉमनर पीपल निकल गए, अब सिर्फ फ्लेवर्स और मेरुलस है स्टेज में। तो ये सब पहले एक्ट होता था, कि पहले तो मूवी बन नहीं सकते थे, तो ये स्टेजेस में एक्ट होता था। इसका मतलब है कि सारे कॉमनर पीपल स्टेज को लीव करके चले गए, अभी वो लोग प्ले में नहीं है। अब फ्लेवियस मेरुलस को बोल रहा है, फ्लेवियस, see whether these basest metals be moved। अब देखो ये बहुत गलत सेंटेंस बोल रहा है, they vanish tongue tied in their guiltness, go you down where the capital, this will this way will I disrobe the images, if you do find them decked with ceremonies। इसका क्या मतलब है बेटा, इस सेंटेंस इस पैरा का मतलब है see whether the basest metal, मतलब the commoner people, the बैड पीपल, मतलब वो भी कॉमनर्स को तो बैड बोल रहा है ना, सो गो होम। तो इसके आगे वाले फ्लेवियस ने इसमें क्या बोला इस पैरा में, गो होम एंड इन अटेनमेंट ऑफ दिस फॉल्ट गैदर वीप टीयर ऑफ रिपेंटेंस विद द लोएस्ट लेवल राइज टू द ओवरफ्लो ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, कि इतना रो कि एकदम लोएस्ट पॉइंट का वाटर एकदम अपर आके हो जाए। और जब बेसिस मेटल का होता है हम्बल स्पिरिट, यहाँ पर बेसिस मेटल का होता है हम्बल स्पिरिट,
तो अब देखो, वो मेरुलस को बोल रहा है कि देखो कि सारे रोड से सारे कॉमनर्स मूव हो जाए, कोई भी स्ट्रीट में तुमको दिखे ना। मतलब इससे तुमको क्या मतलब आता है? फ्लेवियस और मेरुलस इस सीन में आए क्यों? क्या करने का काम है उनका? उनका काम है जो भी बच्चा लोग, जो भी मतलब बच्चा लोग क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी पीपल जो सेलिब्रेट कर रहे हैं सीजर के लिए विक्ट्री, वो लोग सब हट जाए रोड से और बाद में सारे डिसरोब कर दे सीजर के इमेजेस। जो भी सेरेमनीज ऑफ सीजर के लिए है सबको हट जाए। और फिर बाद में बोलता है दे वैनिश टंग टाइड इन द गिल्टीनेस, मतलब इन सारे ये लोग चले जाएंगे अपने गिल्ट में, एकदम चुपचाप जाने चाहिए, ज्यादा बातें ना करे, एकदम चुपचाप चले जाए। और फिर गो टुवर्ड्स द कैपिटल, और कैपिटल का मतलब है सेनेट, मतलब द गवर्नमेंट हाउस जहां पर मीटिंग वीटिंग होता है, वो है सेनेट, कैपिटल। रोम में कैपिटल होता है। दिस वे आई डिस्टर्ब द इमेजेस, मतलब वो बोल रहा है जो भी सीजर के सेलिब्रेशन में इमेजेस है वो मैं सब चीज हटा दूंगा स्ट्रीट से, मैं सबको डिस्टर्ब कर दूंगा। इफ यू डू, अब वो मेरुलस को भी क्या बोल रहा है, अगर तुमको भी अगर मिला कोई भी डेक विद सेरेमनीज, और जो भी तुमको मिलेगा सीजर के सीजर के बड़े में, तो उसको डिस्टर्ब कर देना, क्योंकि सीजर के बारे में एक भी नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा। अब मैं तुमको बाद में बताता हूँ कि सीजर के बारे में क्या होगा, पहले ये खत्म कर लेते हैं लास्ट टू पैरा। मेरुलस बोल रहा है मे वी डू सो। अब मेरुलस को डर लग गया कि क्या हम लोग को करना चाहिए। अब सीजर का पावर तो बहुत ज्यादा ही है ना, तो अब सीजर वॉर से जीत के आ रहा है, तो सीजर का क्या हम लोग को हटाना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए? क्योंकि हम लोग को, अब देखो इधर लिखा है डेक्ड विद सेरेमनीज। सेरेमनीज का मतलब क्या है? मैं तुम लोग को पहले ही बोला था कि फीस्ट ऑफ लूप्रिकल है बच्चा। यस, फीस्ट ऑफ लूप्रिकल है। तो यू नो इट इज द फीस्ट ऑफ लूप्रिकल। तो भी फीस्ट ऑफ लूप्रिकल भी है, तो फीस्ट ऑफ लूप्रिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का चीज होता था। हाँ, नीचे बुला रहे हैं। तो फीस्ट ऑफ लूप्रिकल को कब होता था? 15 फरवरी, मतलब इधर एक टाइम बिंग दिया हुआ है। और feast of Lupercus was a feast day to honor the god of Lupercus, god Lupercus। अब Lupercus कौन था? the protector of flock and herds, मतलब उन लोगों का एक गॉड था लुप्रिकस। तो उसका एक उसके लिए एक फीस्ट होता था, उसको बोलते थे फीस्ट ऑफ लुप्रिकल। तो अब हम लोगों को क्या फ्लेवियस क्या बोलते हुए दिख रहा है? और याद रखना कब होता है? 15 फरवरी, टाइम दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है? नहीं इंपॉर्टेंट डेट नहीं तो मैं आपको फीस्ट ऑफ लुप्रिकल के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। हाँ बट ठीक है, अब फीस्ट ऑफ लुप्रिकल के बारे में हम ज्यादा सेकंड एक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा? तो अभी तक फ्लेवियस क्या बोल रहा है? इट इज नो मैटर लेट नो इमेजेस बी हंग, मतलब बोल रहा है कि फीस्ट ऑफ लुप्रिकल कोई मैटर ही नहीं है, फीस्ट ऑफ लुप्रिकल को सेलिब्रेट तो करेंगे, फीस्ट ऑफ लुप्रिकल हमारे इंटेंशंस के बाहर है फीस्ट ऑफ लुप्रिकल, क्योंकि लेट, अब देखना इंपॉर्टेंट है, लेट नो इमेजेस बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफी, मतलब जो भी इमेजेस, जो भी सेलिब्रेशन, जो भी सेरेमनीज तुमको दिख रहे हैं हैंग रोड में, जो तुम्हें दिख रहा है जो सीजर के लिए हो, सीजर की विक्ट्री के लिए हो, उन सब को हटा दो। लुप्रिकल का रहने दो, फीस्ट ऑफ लुप्रिकल के लिए रहने दो डेकोरेशन, बट द डेकोरेशन फॉर सीजर्स ट्रॉफीज जो सीजर के लिए है उसे हटा दो। I'll about and drive away the vulgar from the street। अब फ्लेवियस क्या बोल रहा है? अब देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, फ्लेवियस के पास थोड़ा ज्यादा पावर है, फ्लेवियस ऑर्डर कर रहा है मेरुलस को, है बट पावर दोनों का इक्वल है, बट फ्लेवियस का थोड़ा अथॉरिटेटिव है नेचर, हम लोग को ये पता चलता है। क्योंकि बच्चा तुम लोग को ये आएगा फ्लेवियस और मेरुलस के बारे में आएगा कि उसका बताओ, कि उन लोग का थोड़ा कैरेक्टर में बताओ, तुमको हिसाब से क्या पावर किसका ज्यादा है, तो ये सब भी तुम्हें आएगा। अब ये सब मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है बेटा? क्योंकि ये वीडियो अब आधा घंटे का हो गया। अब ड्राइव अवे द वल्गर फ्रॉम द स्ट्रीट, तो अब मैं और तुम, अगर हम, सो डू यू, I'll also drive away the vulgar from the street and so do you when they preserve in them thick, मतलब जब तुम्हें वो लोग एक क्लस्टर में मिलेंगे, जब तुम लोग एक सराउंडेड जगह पर रोड में मिलेंगे, तब तुम क्या करना, हम लोग दोनों उनको रोड से हटा देंगे। अब देखना, अब उन लोग का रियल मोटिव दिख रहा है ये 3 सेंटेंस में, ठीक है? क्या बता रहे हैं? There's going
These growing features feathers plucked from Caesar's wing. मतलब हम लोग जो फोटोज को डिसरोब कर रहे हैं, जो ये जो फोटोज को हम लोग निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं सारा, तो इससे क्या हो रहा है, अब इस फोटोज को ये लोग ने लिया है फेदर से, एक बर्ड का फेदर होता है वैसी फेदर। तो अब सीजर का जो विंग्स है उसमें बहुत सारे फेदर्स है। अब हम सीजर के विंग्स को कैसे नीचे करेंगे, फेदर्स को कैसे हटाएंगे, बाय डिसरोपिंग। ठीक है बच्चा, मजा आएगा पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, क्या कॉन्स्पिरेसी बन रहा है। अब तो रुको यार, अभी तो चालू है बस। ठीक है, तो सीजर का फ्लग मतलब सीजर का पावर को हम लोग ऐसे ही कम करेंगे, सीजर का जो भी पावर है उसको हम लोग ऐसे ही कम करेंगे। एंड विल मेक हिम फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच, मतलब अभी हम लोग उसको कोई किंग या किसी नोबल इंसान की तरह उड़ने नहीं देंगे, उसको हम लोग ऑर्डिनरी पिच देंगे हैं, मतलब उसको एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीट करेंगे सब जन, कि वो जीत के आया तो जीत के आया, ठीक है हाँ जीत के रहेगा। हु एल्स वुड सोर अबव दी। तो बेटा यहाँ पर सारे लाइंस तो कॉपी हुए नहीं है, तो मैं सेकंड सारे जो भी सेंटेंस है पढ़ के तुम्हें समझा देता हूँ। ठीक है, हु एल्स वुड सोर अबव द व्यू ऑफ men, who else would above the view of the men। और लास्ट सेंटेंस है एंड कीप अस ऑल इन द सिवियर फियरफुलनेस। तो अभी ये जो लास्ट टू सेंटेंस है मैं उसका मीनिंग तुम लोगों को बता देता हूँ, हाँ पूरा पैराग्राफ का स्टार्टिंग से पूरा पैराग्राफ का बताता हूँ। In no matters, let no images be hung of Caesar's trophies। इधर क्या बता रहा है, the tokens of Caesar's victory, इन सबको हम लोग हटा देंगे, is about shall go about, wheel shall go about, and where we see the common peoples clustered in an area seem then in crowded, हम लोग उनको वहां से हटा देंगे। and these growing feathers plucked from Caesar's power, इसका क्या मतलब है, in this way, मतलब वो लोग बोल रहे ना सारे हटा देंगे, सारा डिस्टर्ब कर देंगे, इस लोग क्या करना चाहते हैं इससे, इन द वे इन दिस वे वी पुट अ चेक इन द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी एंड इंक्रीजिंग पावर ऑफ सीजर, मतलब सीजर को लोग ऑर्डिनरी पिच देंगे हैं, वो लोग सीजर का सारा पावर को नीचे कर देंगे और सीजर को भी एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह पोर्ट्रे करेंगे। और हु एल्स का मतलब है हु अदरवाइज। ठीक है बेटा, अब मैं लिखूंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा बट लिख देता हूं, हु अदरवाइज ठीक है, हु अदरवाइज सोर अबव द मैन, मतलब वरना वो अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो वो हम सबके ऊपर अपर हैंड ले लेगा, फिर बाद में वो हम लोग को अपने तरीके से रूल करेगा, ही विल बी द किंग। और तुम्हें बाद में सीजर के कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा दैट सीजर वाज अ वेरी, वो एक टायरेंट था, वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहता था। और फिर लास्ट सेंटेंस क्या है, एंड कीप अस ऑल इन द सीवियर फेयरफुलनेस, यहाँ पर सीवियर फेयरफुलनेस का मतलब होता है स्लेविश, स्लेवरी। ये लास्ट लाइन यहाँ पर नहीं है बट उसका क्या मतलब है, इन स्लेवरी में रखेगा फिर सीजर हम लोगों को। और फिर क्या है, हु अदर, अब लास्ट जो सेंटेंस है ये सेंटेंस, और जो सेंटेंस है यहाँ पर जो मेरा आया नहीं प्रिंट, उसका क्या मतलब है, हु अदरवाइज गेट द अपर हैंड ऑफ अस एंड आवर लिबर्टीज विल बी थ्रेटेंड एंड ही शैल कीप अस इन द स्टेट ऑफ फियर एंड स्लेवरी। मैंने जो बताया था वो हम लोग के ऊपर अपर हैंड ले लेगा और उसका स्लेवरी के ऊपर हम लोग को रखेगा। सब ये पूरे में हम लोग को क्या दिखाता है, दैट दे आर फियर। यहाँ पर फ्लेवियस और मेरुलस, जो सीजर का जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी एंड पावर है, जो रिसेंट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी है, उससे डर लग रहा है उन लोगों को, वो लोग डर रहे हैं कि सीजर का अगर ऐसे ही पावर चलते रहा, सो उन लोगों को डर लग रहा है दैट दे आर फियर एज सीजर विल स्टैंड विक्टोरियस एंड स्टैंड एज अ डिक्टेटर एंड रूल ओवर रोम फॉर रेस्ट ऑफ द इयर्स, मतलब जब तक सीजर जिंदा है तब तक वो रोम में रूल करेगा। ठीक है बच्चा, तो इसका यही मतलब है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर तुमको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना, एंड अगर कमेंट कर देना कि तुम लोगों को क्या क्या दिक्कत हो रहा है, सो आई कैन हेल्प यू इन द अदर वीडियोस, इन द अपकमिंग वीडियोस। ये एक वीडियो में मैं इसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड मैं तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स दे दूंगा, ओके, और क्वेश्चन आंसर्स का थोड़ा आंसर्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाय, सी यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, वॉट एवर जो भी है आपको, चुम्मा। हाँ, अभी
अच्छे से पढ़ाई करो, और मैं पहले ही वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ कि तुम लोग का जब तक आए तो तुम लोग अच्छे से पढ़ो। बाय बाय, सी यू। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्त लोगों को प्लीज शेयर करना, लाइक उनको भी हेल्प चाहिए, ठीक है। बाय।